स्टूडेंट्स आज ही शुरू करने जा रहे हैं अपना नैक्सट चैप्टर फोर्स एंड मोशन। फोर्स की होंगी है, मोशन की होंगी है, बट उस तो पहला सानू गल करनी पेगी स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज़। असी डिस्कस किया शुरू पहले चैप्टर च फिजिकल क्वांटिटीज़। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? अगर याद होए, दोज क्वांटिटीज़ इन विच laws of physics can be expressed and which can be measured and expressed in numbers। ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, another type is derived quantities। ਉਦੋਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਸਕੇਲਰਸ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਾਂ ਆਹ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਏ ਸਰਟਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ 20-25 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਕਹੇ ਵੀ ਗਰਲਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੋਇਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੋਇਸ ਗਰਲਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦੋਸ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਡੇ ਸਕੋਲਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਸਕੋਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 ਫੀਟ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ qualities are depending on which we can categorize a class। Similarly, confuse नहीं होना, physical quantities can be categorized in another way and that is scalars and vectors। तो इस चैप्टर सानू इस चीज़ की जरूरत पैनी है। What are scalar quantities? तो what are vector quantities? ਜਾਂ in short we can say scalars and vectors। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰਸ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ, ਸਕੇਲਰ ਸੀ। ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। स्केलर क्वांटिटीज, a quantity which requires only magnitude for its representation। जिहदी सिर्फ एक मैगनीट्यूड ही होंदी है, उन्हें कहने आ स्केलर क्वांटिटी। which possesses only magnitude and no direction is called scalar or scalar quantity। A quantity which possesses only magnitude and no direction, सिर्फ मैगनीट्यूड ही होंगी उसकी, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਾਲਡ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਹੈਡਿੰਗ ਸਕੇਲਰਸ। ਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਵੈਕਟਰਸ। A quantity which possesses both magnitude and
डायरेक्शन। बोथ magnitude as well as direction is called vector quantity। A quantity which possesses both की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन, ਉਹਦੀ मैग्नीट्यूड भी ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੀ डायरैक्शन भी ਹੁੰਦੀ है, इज कॉल्ड वैक्टर क्वांटिटी। ਇਹਦੀ एग्जांपल्स ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯੂ ਸਾਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc. So there are many quantities which are vector quantities। जो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਵੈਕਟਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏ ਵੈਕਟਰ। representation of vectors। What is vector? So vector has both magnitude as well as direction। So we represent vector as a form of a line, straight line having an arrowhead। एक straight line ड्रा कर दो, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ arrowhead ਬਣਾ ਦਈਏ, that represents vector। अगर ਅਸੀਂ geometrically ड्रा करना होए इस तरह ड्रा कर लिया, the length of this vector shows the magnitude and this arrowhead shows the direction of that vector। लिखना है suppose this point is A, this is B, this is tail, this is head। इधर tail आ गया साढ़े कोल, इधर head आ चुका है। So we represent like this A B vector। So A B लिखे ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक arrow ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, that represent the vector। अगर इन वैसे लिखना है suppose this is force vector F vector, so we can also represent quantity like this। it shows this F, इन बोला किस तरह F vector, F is a vector quantity। इस तरीके ਨਾਲ ਹੀ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਪ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਪ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਡਰਾ ਇਟ ਟੂ ਸਕੇਲ, ਸਿੰਪਲੀ ਹੇਅਰ ਵੀ ਡਰਾ ਲਾਈਕ ਏ ਗ੍ਰਾਫ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ। ज़्यादा बड़ा शो करना भी कैन आल्सो से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये लाइन होनी छोटी हो जाएगी। सो फिलहाल आप ये देखना भी एक वैक्टर को असी लाइन की तरह प्रजेंट कर सकते हैं। उस लाइन के उपर एरो हैड बना दिए, दैट विल शो अस द डायरैक्शन, लैंथ ऑफ दैट लाइन शोज द मैग्नीट्यूड। इस तरह ही वैक्टर रिप्रजेंट कर दिता। हुण वैक्टर को दो गल्लां ने, किहड़ियां ने, एक मैग्नीट्यूड है तो एक डायरैक्शन है। तो साडे को वैक्टर आ चुका सी से ए बी वैक्टर। एस वैक्टर की अगर मैग्नीट्यूड लिखनी हो, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर, वी से दिस एज ए बी मॉड। इन्हू कहते आप मॉडुलस कह रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म च मॉड। सिमिलर अगर वैक्टर साडे को एफ वैक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया एफ वैक्टर दिस, और सिंपली लाइक दिस विदाउट द वैक्टर। वैक्टर नहीं ऊपर सिंबल शो करांगे, दैट विल शो अस द मैग्नीट्यूड, ਜਾਂ ਮੋਡ डाल दी ज़्यादा क्लीयर करने वास्ते, तो अंदर वैक्टर का निशान पा दी, इट विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर। सो असीं देख लिया वैक्टर को असीं किस तरह रिप्रजेंट कर रहे हैं। सो लैट अस डिस्कस सम टाइप्स ऑफ वैक्टर्स। कुछ टाइप्स आपां डिस्कस करनियां ने भी वैक्टर्स किहड़े-किहड़े टाइप्स होंदे साडे कोल।
ये सारी इंट्रोडक्शन जा रही है। इस तो बाद ही देखांगे भी वैक्टर्स ਨੂੰ किस तरह अगे ही यूज़ करना हैगा। टाइप्स ऑफ वैक्टर आ गए। एक तरह कहते भी इक्वल वैक्टर्स, किन्ना वैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ इक्वल कहांगे। सपोज वी हैव वैक्टर ए एंड अदर वैक्टर इज बी वैक्टर। हुण की देख रहे ਆਪਾਂ, इस वैक्टर की डायरैक्शन मैं लैंथ ज़्यादा चेंज करना, कुछ होर है, इसकी डायरैक्शन कुछ होर है, इसकी लेंथ कुछ होर है, इसकी लेंथ कुछ होर है। तो दो वैक्टर्स ਨੂੰ उदों ही इक्वल कहांगे वैन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरैक्शन। सपोज दिस ए वैक्टर, दिस इज बी वैक्टर, they will be called equal vectors, a equal to b। की याद रखना, those vectors are said to be equal vectors which have same magnitude and same direction। so two vectors, two or more vectors है ना, two or more vectors are said to be equal if they possess equal magnitudes and same direction। दो होन, दो तो ज़्यादा होन, उन्होंने सब ਨੂੰ इक्वल कहांगे ਤਾਂ ही अगर मैग्नीट्यूड भी सेम उन्हों की तो डायरैक्शन भी की है सेम है। एक टाइप ये हैगी साडे कोल। अनदर टाइप कैन बी देयर को इनिशियल वैक्टर्स। इनिशिएट करना मीनस शुरू करना। सो इनिशिएशन ना स्टार्ट ना डील कर रहा। तो वैक्टर्स विच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ। ਦੋ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ए ਵੈਕਟਰ ਇਹ, B ਵੈਕਟਰ, C ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। The vectors which have same starting point are called co-initial vectors। सो दो वैक्टर जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट की है सेम है आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स। ये भी साढ़े को टाइप आ गई। कोलिनियर वैक्टर्स भी आ सकते हैं। व्हाट आर कोलिनियर वैक्टर्स? कोलिनियर मीन्स लाइन रिलेटेड है। तो दो वैक्टर्स विच आर अलॉन्ग द सेम लाइन। ये ख्याल है देखना, अगर साढ़े को लाइन है इस तरह की, साढ़े को ये पे ने, अगर एक वैक्टर ए इस जगह पर जा रहा है, इस जगह कितने बी वैक्टर जा रहा है ना, सपोज वी से दैट दीस आर कोलिनियर वैक्टर्स और वैक्टर्स विच आर अलॉन्ग पैरल लाइन्स। एक लाइन साढ़े को ए, एक होर लाइन है, ये तो रिप्रेजेंट कर देता। सो ए एंड बी आर कोलिनियर वैक्टर्स। डायरैक्शन आपोजिट भी हो सकती है इन्हों की। चाहिए की आ, दो वैक्टर जां तो सेम लाइन पर होन, राइट टू राइट जा रहे या राइट टू लैफ्ट आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ दे आर अलॉन्ग द सेम लाइन और दे आर अलॉन्ग पैरल लाइन्स, दे आर सेड टू बी कोलिनियर वैक्टर्स। वैक्टर्स which are along the same line or are along parallel lines are called
कोलिनियर वैक्टर्स तो लाइन तो आया रिलेट किया आप ਜਿਹੜੀ सेम लाइन सेम पैरल लाइन्स ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ। ਆ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स 1। यूनिट वैक्टर आ गया साढ़े कोल। हो यूनिट मीन्स एक अगर मैं क्वेश्चन करा 5 डिवाइड बाय 5 आंसर वुड बी 1 इसका आता साढ़े को आंसर उसे जी क्वांटिटी ने उसे ना डिवाइड कर दी साढ़े को आंसर की आ जाता 1 आ जाता। कुछ इस तरह का ही इस जगह करना। सपोज देयर इज वैक्टर ए वैक्टर इफ इट इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड then we say that we have found unit vector of a vector. It is denoted by cap. इस तरह कैप ऊपर डाल दी दिया तो दिस a cap means here unit vector of a. So a vector divided by its magnitude is called unit vector. A vector divided by its magnitude is called unit vector, or a vector which possesses zero magnitude is called unit magnitude is called unit vector. So इसकी डायरेक्शन केड़ी होएगी? It possesses the same direction as the a vector. So अगर मैं एग्जांपल ले ली थे a vector is equal to a इस तरह साढ़े यूनिट वैक्टर्स आ जाते हैं। ये सिंपली सानू डायरेक्शन जी वो बारे दसते हैं। अगर किसी ना भी मल्टीप्लाई होणगे दे विल जस्ट शो देयर डायरेक्शन। सो असीं अगे पढ़ना जाके देयर आर 3 यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग 3 डायरेक्शंस आई कैप जे कैप एंड के कैप। वो असीं नैक्सट डिस्कस करांगे। फिलहाल आप देखिए नैक्सट यूनिट वैक्टर देख लिया। नैगेटिव वैक्टर नैगेटिव मीनस जोड़ा किसी को कैंसल कर रहा है कटता पे ना ऑपोजिट है डायरेक्शन कुछ इस तरह का। अगर मैं कहूँ 5 अगर उन्होंने 5 -5 ऐड कर देंगे तो की होएगा साडा? किसी को 5 रुपये दे के उसको 5 रुपये ले लिए तो की हो गया? इफेक्ट हो गया कैंसल। सो आंसर वुड बी 0। सो -5 ने तो सारा इफेक्ट की कर देता है कैंसल कर देता। सिमिलरली वैक्टर से की है a vector having equal magnitude but opposite direction from a given vector। कोई सानू वैक्टर गिवन ने वो उत्थे पिया सी एक वैक्टर असीं होर ले लिया विच हैव सेम मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन की होदी ऑपोजिट इज कॉल्ड नेगेटिव वैक्टर पर किदा ऑफ द गिवन वैक्टर। सो इना लंबा नहीं याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली a vector which is having a same magnitude but opposite direction is called negative vector। so अगर मैं कहवा a vector है another vector सी बना लिए which have same length same but direction is opposite is negative vector। so here माइनस इन्होंने रिप्रेजेंट कितना कर देंगे माइनस साइन अगे लगा दीदा वा। सो माइनस a vector is
ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ए ਵੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 6th ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ जीरो वैक्टर और नल वैक्टर। जीरो कैरेक्टर या नल वैक्टर। जिस तरह जीरो हुणे आपां डिस्कस किया सी 5 की एग्जाम्पल ली सी 5 अगर -5 ऐड कर दिए एस 5 जिदा नैगेटिव ऐड कर दिए वी गैट आंसर 0। इतों सानू अगर आ रहा इफ ए वैक्टर इज एडेड टू इट्स नैगेटिव वैक्टर दैन व्हाट वी गैट इज जीरो वैक्टर और नल वैक्टर। ए वैक्टर is when added with its negative vector gives 0 और null vector। सो जीरो वैक्टर साढ़े को आ रहा एग्जाम्पल ही ए वैक्टर प्लस नैगेटिव ऑफ ए वैक्टर अगर ऐड कर देंगे ये तो क्या इफैक्ट वुड बी 0। सपोज तुसी 5 मीटर इस साइड ते गए तो फिर 5 मीटर वापस आ गए तो कित्थे रह गए जितों शुरू होए उत्थे ही जाकर रोके तो इट मीनस इफैक्ट इज कैंसल्ड आउट। सो सच वैक्टर इज कॉल्ड जीरो वैक्टर जो इफैक्ट साढ़े को बचा। इट हैज़ आरबिट्रेरी डायरैक्शन। आरबिट्रेरी मीनस जिहड़ी मर्जी डायरैक्शन से लै सकते हैं। जीरो किसी च भी ऐड कर दिए ना सबट्रैक्ट कर दिए इट हैज़ नो इफैक्ट। सिमिलरली दिस जीरो वैक्टर्स आर एडिड सबट्रैक्टेड जिस मर्जी वैक्टर से ऐड कर लिए सिंपली हर जगह पर जीरो आ चुका जीरो वैक्टर 1 होंदा यूनिट वो साडा यूनिट वैक्टर आ। सो सच काइंड ऑफ अलजैबरा इज एस्टैबलिश्ड हियर। सो ख्याल रखो ये आपां डिस्कस करना इहदा अलजैबरा जिहड़ा स्केलर्स तो वखरा हुंदा है। सो ये भी गल इत्थे ही असीं डिस्कस कर लीए। एक तरफ ने स्केलर्स एक तरफ ने वैक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी ही पढ़ते रहे बहुत ज़्यादा मास बारे आ टाइम बारे आ लैंथ बारे आ इन्हां दा जिहड़ा मैथेमैटिक्स जो असीं अज तक पढ़िया है अलजैबरा उस रूल ऑफ एडिशन सबट्रैक्शन सारे वो चलते हैं। एस कैटेगरी च की आ दे हैव डिफरेंट अलजैबरा हेयर इन्हां दे रूल्स ऑफ एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आर डिफरेंट। सो इन्हां दा जिहड़ा एडिशन सबट्रैक्शन अलग है इन्हां दा अलजैबरा की अलग है। हाँ देर आर सम कन्फ्यूजन कई इस तरह की क्वांटिटीज असीं देखते हैं जिस तरह करंट कह लीए प्रैशर कह लीए विच सीम टू हैव बोथ मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन। तो उन्होंने मैगनीट्यूड भी होंदी है उन्होंने डायरैक्शन भी होंदी है बट दे डू नॉट ओबे लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन। सो वैक्टर से ख्याल रखना सिर्फ मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन होने वाली चीज़ को असी वैक्टर नहीं करांगे। मोरओवर किया विच ओबेज द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन उन्होंने ही कहांगे दोस आर कॉल्ड वैक्टर क्वांटिटीज। सो इत्थे क्लीयर कर दिए स्केलर्स का ते वैक्टर्स का अलजैबरा की अलग अलग है। चलो फिलहाल होर डिस्कस करी गल पोजीशन वैक्टर किनू कहने हैं। पोजीशन वैक्टर अगर क्वेश्चन करदा मैं तुहानूं व्हाट इज पोजीशन ऑफ दिल्ली और व्हाट इज पोजीशन ऑफ चंडीगढ़ दिल्ली कित्थे आ चंडीगढ़ कित्थे आ की कहोगे। कुछ बच्चे मान लो गुरदासपुर च ने कुछ बटाले च ने कुछ अमृतसर च ने कोई दिल्ली च आ बैठे ने कुछ उस पटने च बैठे होन तो की कहेंगे सब दे वास्ते की आ सपोज दिल्ली एट दिस लोकेशन से दिस दिल्ली सम स्टूडेंट्स आर रिटन लाइक दिस इत्थे बैठे ने कहेगा मेरे तो ये 200 किलोमीटर दूर है से अलॉन्ग ईस्ट ये कहेगा मेरे तो थोड़ा दूसरी डायरैक्शन है ने ये वास्ते डिस्टेंस होर है डायरैक्शन होर है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर भी कौन दिल्ली बारे गल कर रहा है। इट मीनस किसी की पोजीशन दसनी है
तो पहला सानू ये दसना पेगा भी 10 कौन रहा है। सो दैट इज़ वाई वी चूज ए पॉइंट इन स्पेस। असी स्पेस कोई पॉइंट चूज कर लिया, मैं इस जगह पर खड़ा हाँ, मैं इत्थे खलो गया अपनी जगह पर। हुण मैं देखना दिल्ली किस डायरैक्शन च है तो कितनी दूर है। दैट इज़ कॉल्ड सेज आर वैक्टर, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वैक्टर। इत्थे गल क्लीयर कर दईए, ਜਦੋਂ भी असीं ऑब्जर्व करना तो मोस्टली असीं की करते हैं जो पढ़ते असीं वी डिवाइड स्पेस इंटू 3 डायरैक्शनस। जिद्दां रूम के कॉर्नर तुसीं खड़े हो तो की देखो 3 लाइन्स निकलदियां ने, एक इस साइड ते, एक इस साइड ते, एक उपर बनाउणी हैगी है। लैंथ है, ब्रैथ एंड हाइट आ, पर ब्लैक बोर्ड पर असीं ये डायरैक्शन नहीं ड्रा कर सकते ना। यू ड्रा लाइक दिस। सो दे से इट इज़ एक्स वाई and z, length, breadth and height. So we divide space in 3 directions, x y z। कुछ बुक्स इनू x मानदियां ने, y इनू z। सो आपां x y z की सीक्वेंस इहो रखनी हैगी आ। सो अगे गल कीती सी यूनिट वैक्टर दी। सो आई कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, j कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, z कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। सो तिना एक्सिस से अलॉन्ग डायरैक्शन दसन वास्ते उन्होंने यूनिट वैक्टर्स आप रिप्रजेंट कर देते हैं, आई कैप, जे कैप तो के कैप। उस सॉरी इस जगह पर के कैप। ओ इज सैट टू बी ओरिजन। ये ओरिजन आ जिहड़ा असीं ऑब्जरवेशन पॉइंट ही रख लिया अपना, जिस जगह पर मैं खड़ा वा इस जगह पर खड़ा होकर मैं सारी स्पेस में ऑब्जर्व करदा अपने आसे पासे। सो फ्रॉम दैट 3 एक्सिस आर देयर। हुण मैं दसना भी इत्थों उस जगह की पोजीशन कितनी है। मान लो मैं गल की सी दिल्ली की गल कर रहा से इस जगह पर। सो दिस length of this vector shows the magnitude of the vector and direction ਜਿਹੜੀ ਆ that is given by this arrow. So position vector ਕੀ ਹੈ? Position vector tells the position of a body with respect to origin. It tells the position of a point या body with respect to origin. Origin means जिस जगह ते ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लै लिया जिसों सारी स्पेस नूं ऑब्जर्व करते पे असीं खलो के। अनदर वैक्टर आ जाता डिसप्लेसमेंट वैक्टर आ जाएगा, वर्ड होर यूज़ करोगे असीं डिसप्लेसमेंट वैक्टर। असीं ये भी गल कर ली इस जगह ते। हुण ये परसन दिल्ली सी, इस जगह तो चल के किसी होर डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका। दिस इज न्यू डेस्टिनेशन, से इट सम प्लेस F. सो दिस वैक्टर फ्रॉम द ਇਹਦਾ ओरिजिन कुछ नहीं देखांगे आप ओरिजिन का रिलेशन है, बट फिलहाल देखिए असी वैक्टर फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इस जगह तो शुरू होया, परसन इस जगह पर पहुँच गया, दैट इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट वैक्टर। ए वैक्टर विच गिव्स द डिसप्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट वैक्टर। सो इस जगह का पोजीशन वैक्टर एक है, इसका दूसरा है। नैक्सट असीं डिस्कस करांगे वट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस वैक्टर एंड दीज 2 पोजीशन वैक्टर्स। बट फिलहाल असीं की कह रहे हैं डिसप्लेसमेंट वैक्टर की है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड direction of displacement of position of a body। बॉडी स्पेस एक जगह तो दूसरी जगह चली गई, वो कितनी दूर गई, वो किस डायरेक्शन च गई, दैट वैक्टर्स इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट वैक्टर।
इस जगह ते एक इंपॉर्टेंट साडे कोल आ जाता डिस्टिंक्शन, दो वर्ड ने साडे कोल, डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट। ये बच्चों च आम तौर पर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो आज तक असी पढ़िया वा दैट इज़ डिस्टेंस, चाहे वो डिसप्लेसमेंट भी होंगी रही, बट वर्ड सानू जो यूज़ करते रहे, असी करते रहे डिस्टेंस। सपोज ए बॉडी इज ए जगह तो शुरू हो गया सी, बी जगह तो जाना सी, घर तो जाना सी असी किसी पर्टिकुलर शॉप ते, तो की आप देखते हैं गली थाने जाके, फिर सड़क थाने जाके, फिर बाजार च मुड़ के इस तरह पहुँच जाते उस जगह पर। बिल्कुल साढ़े घर तो उस शॉप तक जनरली सीधा रस्ता नहीं होंदा, कोई ना कोई सानू मोड़ कट के जाना ही पैंदा। एक शहर दूसरे शहर जाना, कोई इस तरह जा, कोई दूसरे रस्ते से जा सकता है, कोई तीसरे रस्ते ने घूम के जा सकता है सैर करदा करदा। सो ए तो बी तक जान दे हज़ारां लखां ही रस्ते होणगे। सो आल द लैंथ ऑफ आल सच पाथ्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। जो रस्ते की असल च लैंथ हैगी आ, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। डिसप्लेसमेंट की है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विद डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। सारे रस्ते सब तो छोटा रस्ता किहड़ा है भी बिल्कुल सीधा असी ए तो बी ते जाइए, ए दी लैंथ सब तो छोटी होएगी, तो सब तो छोटा डिस्टेंस किहड़ा ए वाला। फर्दर की है, इट पोजैसेस एरो, इट हैज़ डायरेक्शन, इट गिव्स कित्थों जाना, ए तो जाना तो बी वाले पासे जाना हैगा। इट गिव अस थ्रू थिंग्स, डिस्टेंस लैंथ कितनी है उस पाथ की प्लस द डायरेक्शन। सो दैट्स लैंथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मेक्स इट ए वैक्टर क्वांटिटी। सो की देखिया सी, डिस्टेंस जिहड़ा है स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ओनली लैंथ ऑफ पाथ, वेयर एट डिसप्लेसमेंट इज वैक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ये गल का फर्क याद रखना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिसप्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वांटिटी। इट गिव्स द स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, it gives the shortest distance, with the direction from initial point to final point। पाथ की असली लैंथ दसेगा जिन्हें भी अं की ट्रैवल किया, ये दसेगा भी एक जगह तो उस जगह पर आप पहुँचे हाँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किहड़ा हो सकता है, फर्दर शॉर्टेस्ट मीनस स्ट्रेट लाइन ही है, होर शॉर्टेस्ट कोई नहीं तो मना है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना आ रहा, दूसरा डायरेक्शन की है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये स्केलर है, ये वैक्टर क्वांटिटी है, होर की हो सकता। यूनिट बारे की इन्हां दा हैगा, यूनिट दोनों के सेम ने बिकॉज दे आर डीलिंग विद लेंथ। अगर ये मीटर च मीटर सा, किलोमीटर किलोमीटर, सो दे पोजैसेस दिस डिमेंशन ऑफ लेंथ, दोवां च आ रहा साडे कोल। थोड़ा जिहा होर डिफरेंस आप चैक कर लीए इस जगह पर। सपोज वी आर मूविंग इन ए सर्कल, कोई बंदा सर्कल है, रेडियस आर है, ए सर्कल च किसी ने चक्कर लगाया सारे तो घूम के वापस आ गया, की कहेगा भी मैं पूरा चलिया सी ते वापस आ चुका इस जगह पर, मेरा डिस्टेंस कितना है, तुसीं कहोगे 2πr। डिसप्लेसमेंट कितनी है, कुछ भी नहीं, जिथों शुरू होया उत्थे आ गया। इट मीनस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा इनिशियल पॉइंट जिहड़ा सी, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बोथ आर सेम। तो डिसप्लेसमेंट क्यों गया इस केस 0, थोड़ा जिहा आइडिया क्लीयर हो जाता सानू। डिसप्लेसमेंट में है हमेशा इनिशियल तो फाइनल पॉइंट नूं ही डील करना है। डिस्टेंस ने एक्चुअल कितना रस्ता ट्रैवल किया वो बारे दसना। एक चक्कर लाया 2πr, 2 लगाए 2, डबल मल्टीप्लाई n चक्कर लगाए n, पर डिसप्लेसमेंट की रहेगी 0 अगर सेम पॉइंट पर आ रहा।
अगर ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ डिस्टेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस अद्धा रस्ता गया ना साढ़े को इतों चले इस जगह पे पहुँच के तो पाई r वाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट इस तो इस जगह पे इज इक्वल टू डायामीटर यानी कि r प्लस r इज इक्वल टू 2r इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर सो आ फर्क इसी याद रखना डिस्टेंस की है डिस्प्लेसमेंट की है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है वेयर एज डिस्प्लेसमेंट की साढ़े कोल वैक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस नू टाइम नाल डिवाइड कर दी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो की आ जाना साढ़े कोल इट विल बी कॉल्ड स्पीड वेयर इट इज कॉल्ड वेलोसिटी स्पीड इज a scalar quantity whereas velocity is a vector quantity स्पीड की शो कर रही है चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम समय के चेंज होना डिस्टेंस कितना कितना फर्क आ रहा वेयर आर डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम दैट गिव्स अस द वेलोसिटी सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी इज वैक्टर क्वांटिटी सो ये असी थोड़ा जिहा फर्क याद रखना ये एक दो टर्म आप होर देख लीए वैक्टर्स इन सेम आर्डर अगर कह दे ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है वैक्टर्स इन सेम आर्डर ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग होएगा अगर एक वैक्टर साढ़े को ये जा रहा दूसरा वैक्टर अगे आ रहा तीसरा इस तरह साढ़े को आ रहा such vectors are called vectors in the same order एक वैक्टर खत्म हो रहा दूसरा वैक्टर की हो रहा शुरू हो रहा अगे जा रहा उस तो अगे जिथे एंड पॉइंट आया इहदा इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका इहदा एंड पॉइंट आया नेक्स्ट का की आ गया स्टार्टिंग पॉइंट आ गया सच वैक्टर्स आर कॉल्ड वैक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन हुण आ गया आप वैक्टर्स इन ऑपोजिट आर्डर किनू कहांगे अगर आ दो वैक्टर जा रहे हैं इस तरह तो सी वैक्टर इधरों आ रहा है साढ़े को दोवां दे जिहड़े हैड ने आपस टकरा गए इस जगह ते आ गए टेल ही जिस जगह ते एक जगह का एंड हो रहा दूसरे का भी उस जगह ते एंड हो रहा आके तो सच वैक्टर देखिएगा ए एंड बी आर इन सेम आर्डर वेयर एज सी इन इज ऑपोजिट आर्डर इस तरह का स्ट्रक्चर साढ़े को है ए वैक्टर आप इस जगह ते गए बी वैक्टर सी वैक्टर डी वैक्टर ए बी सी डी एंड ई आर इन सेम आर्डर आ रहा वैक्टर खत्म हो रहा उस तो नवा वैक्टर शुरू हो उस जगह तो सच वैक्टर्स कॉल्ड वैक्टर्स इन सेम आर्डर अगर इस जगह तो की है ये आ रहा सपोज इट इज आर वैक्टर नाम रख दिया सी आर वैक्टर इज कॉल्ड वैक्टर इन द ऑपोजिट आर्डर ਜਾਂ तो एको थां तो स्टार्ट हो ਜਾਂ एको थां ते एंड हो सच वैक्टर्स आर कॉल्ड वैक्टर्स इन ऑपोजिट आर्डर ਇਹਦਾ भी ਆਪਾਂ ख्याल रखना है एक होर टर्म साढ़े को यूज़ करनी असी रिजल्टेंट वैक्टर इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैक्टर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन ए पोजीशन किसी जगह ते किन्ने वैक्टर्स एक्ट करते पे ने सब का मिल के की इफैक्ट आ रहा टोटल दैट नैट इफैक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर्स ने कह लो किन्ने वैक्टर्स जो काम कर सकते हैं द सेम वर्क इज डन बाय ए सिंगल वैक्टर सो दैट सिंगल वैक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर्स सो अगर मैं कहता कि आर वैक्टर इज हियर इट प्रोड्यूसेस द सेम इफैक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय मैनी अदर वैक्टर्स सो एडिशन तुसीं हले नहीं की बट फिलहाल सिंपली एक तुहानूं आइडिया हो रहा जो सारे वैक्टर्स मिलके काम कर रहे हैं ए बी सी डी एंड ई वैक्टर
वो कल्ला ही कौन कर सकता है, अगर कर सकता है आर वैक्टर, दैन वी से दैट आर वैक्टर इज रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ दीज वैक्टर्स। सिमिलरली जिस तरह एडिशन कर रहे हैं 10 20 30 40 है ना, ये ना आ रहा साढ़े को इस तरह आ रहा साढ़े को 100 इज सम ऑफ ऑल दी। सिमिलरली इन वैक्टर्स ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਅਲਜਬਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।